Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Dr. Fawad Ali. Today our topic is ethers. What is meant by ethers? Organic compound in which oxygen is bonded on both sides by two alkyl groups, or the compound in which oxygen is bonded on one side by alkyl and on another side by aryl group, or we can say that ether or organic compound in which oxygen is attached with two aryl groups. Such kind of organic compound are known as ethers. The organic compound in which two hydrogen atoms of water are replaced by alkyl groups or aryl groups is known as ethers. Types of ethers. We have two types of ethers. Number first, symmetric ethers, or we can say simple ethers. What is meant by symmetric ethers or simple ethers? They type of ethers in which both the R groups are same. We can say such kind of ethers are known as symmetric or simple ethers. Another type is mixed ethers, or we can say unsymmetric ethers. They type of ether in which both the attached alkyl or aryl groups are different. For example of simple ethers, suppose CH3CH3. This is simple ether, dimethyl ether. Example of unsymmetric, suppose we have methyl on one side and ethyl on another side. Example is, name of this type of ether is ethyl methyl ether. So ethers are considered as, ethers क्या है? Number first, Lewis acids. Number second, Lewis bases. Number C, neutral. Number D, all. We know that oxygen having two lone pairs, and oxygen is the main functional group in ethers. So according to Lewis concept, electron efficient species are Lewis bases. So ethers are considered as Lewis bases. What about the nomenclature of ether? There are two types of nomenclature. Number first, common system. Number second, opaque system. In common system, we can say that ethers are alkyl ethers. Alkyl ethers. Ethers in common system, name of ethers is alkyl ether.
In case of symmetric ether, in case of symmetric ether, name will be dialkyl ether, while in case of unsymmetric ether, name will be alphabetic order on the basis of alphabetic order. In case of opaque system, name of the ether will be alkoxy-alkane. Alkoxy-alkane. Alkoxy, the prefix will be of smaller alkyl group, while the parent name suffix will be of larger alkyl group, but name will be alkoxy-alkane. These are some of the examples of ethers. In common system, name will be, this is methyl, this is N-propyl, common name will be, this is unsymmetric ether, and the common name will be on the basis of alphabetic order, और नाम होगा अल्काइल ईथर. तो एक है मीथाइल और एक है प्रोपाइल. तो यूजिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर, मीथाइल अनदर इज प्रोपाइल, तो क्या नाम हो जाएगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे, मीथाइल मीथाइल प्रोपाइल ईथर, मीथाइल प्रोपाइल ईथर. और अगर इसी ईथर का हम आयुपेक नाम देंगे तो आयुपेक में हम यहाँ पे देखेंगे जो स्मॉलर अल्काइल है वो है CH3, इसे हम कहेंगे अल्कोक्सी. तो ये देखें, ये है मीथाइल प्लस ऑक्सीजन, इससे बन जाएगा अल्कोक्सी. और अल्कोक्सी में ये क्या होगा? इट विल बी मीथॉक्सी. और ये क्या है? 1 2 3, ये अल्केन हो जाएगा. ये ग्रेटर लार्जर अल्काइल ग्रुप है, तो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा मीथॉक्सी और इसका जो सफिक्स हो जाएगा वो होगा प्रोपेन. तो इसका जो आयुपेक नेम होगा वो बन जाएगा, इसका आयुपेक नेम हो जाएगा, सेकंड कार्बन पे मीथाइल अटैच है, ये हो जाएगा 2-मीथॉक्सी प्रोपेन, 2-मीथॉक्सी प्रोपेन. यहाँ पे देखे कॉमन सिस्टम, ये मीथाइल है और ये फिनाइल है. अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे तो इसका कॉमन सिस्टम में नेम बन जाएगा मीथाइल फिनाइल ईथर, अल्फाबेटिक ऑर्डर क्योंकि मिक्स्ड ईथर है. और इसका जो आयुपेक नाम होगा, आयुपेक नाम इसका हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कार्बन है इसमें कम है, तो ये हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट अल्काइल है, इट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मीथॉक्सी बेंजीन, मीथॉक्सी बेंजीन. इसका कॉमन सिस्टम में अगर हम देखें, ये है इथाइल और ये भी, तो इसमें एक बन जाएगा इथॉक्सी. सेम नंबर ऑफ कार्बन है अल्काइल ग्रुप में, तो कोई भी हम ले सकते हैं, इथॉक्सी. डाई इथाइल
ईथर कॉमन सिस्टम, क्योंकि दोनों इथाइल है। सिमेट्रिक अल्कीन है, सिमेट्रिक ईथर है। सिमेट्रिक ईथर में हम डाई अल्काइल लेंगे और ये इथाइल है तो डाई इथाइल ईथर। आयुपेक में ये हो जाएगा 1 2, क्योंकि इसमें भी 2 कार्बन है और इसमें भी है, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी ईथेन। इसी तरह इसे देखें, एक मिथाइल है कॉमन सिस्टम में, अगर हम इसे देखें तो ये मिथाइल और यहाँ पे बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। तो ये इस तरह हो जाएगा आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अगर हम इसका आयुपेक, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3, फर्स्ट पे मिथॉक्सी अटैच है, ये हो जाएगा 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह यहाँ पे एक मिथाइल अटैच है और एक प्रोपाइल अटैच है, और कॉमन सिस्टम में हम कहेंगे मिथाइल इन प्रोपाइल ईथर। मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोपाइल है। और अगर हम आयुपेक में लेंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये आइसोप्रोपाइल। इसी तरह और भी कंपाउंड से उसका हम आयुपेक नेम ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे है ये CH2 CH3, ये लॉन्गेस्ट चेन है प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये इथॉक्सी, फर्स्ट कार्बन पे अटैच है 1 इथॉक्सी प्रोपेन। इसी तरह इसे देखें, अगर हम आयुपेक सिस्टम की बात करें तो ये भी लॉन्गेस्ट है, ये भी लॉन्गेस्ट है, ये भी प्रोपेन है, तो इसका ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, हम इसको एक अल्कोक्सी कर देंगे, ये इस तरह हो जाएगा। सेकंड कार्बन पे प्रोपाक्सी अटैच है और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे मिथाइल भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 प्रोपाक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह ये भी एक ईथर है, एक साइड पे मिथॉक्सी है, सेकंड कार्बन पे है, टोटल है 1 2 3 4 ब्यूटेन है, तो ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। ये था ईथर्स, उसका इंट्रोडक्शन और उसका नोमेनक्लेचर। सो इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर की ईथर क्या है, हमने कहा दे आर डेरिवेटिव ऑफ वाटर, जिसमें दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं अल्काइल और एराइल ने। सिंपलेस्ट ईथर, मिक्स्ड ईथर, सिमेट्रिक ईथर, अनसिमेट्रिक ईथर्स। फिर नोमेनक्लेचर था वेरी सिंपल, कॉमन सिस्टम में हम कहेंगे अल्काइल ईथर्स, आयुपेक में हम कहेंगे अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी मीन्स जो स्मॉलेस्ट चेन होगा उसको के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाए तो ये बन जाता है अल्कोक्सी। जिस तरह बहुत एग्जांपल है मिथॉक्सी प्रोपेन एट्सेट्रा। सो दिस वाज अबाउट ईथर। थैंक यू सो मच।